Good evening, class. Today's lecture is about sterilization. So before starting the sterilization chapter, these slides will take it as a reference. Okay. So start with the sterilization. So sterilization means it is a process by which the microorganism, maybe it is bacteria, fungi, algae, all the microorganism are killed. Okay, okay, whether it is in a vegetative form or it is in a spore form. वेजिटेटिव एंड स्पोर ये दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, वेजिटेटिव फॉर्म मीन्स होता है जब भी कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है तो जो इनिशियल स्टेज होती है बैक्टीरिया की, दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव स्टेट. ओके, सो इन द वेजिटेटिव फॉर्म स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो बैक्टीरिया की किल इजिली हो जाती है. ठीक है. सेकेंड जो बैक्टीरिया का फॉर्म है वो है स्पोर फॉर्म. स्पोर फॉर्म मीन्स होता है जब वेजिटेटिव फॉर्म अगेन ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इनटू द स्पोर, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है. तो जब कोई भी बैक्टीरिया स्पोक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको किल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है. सो देयर आर फ्यू स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बाय विच वी किल द स्पोर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. So sterilization is the process by which the microorganism kill, whether it is in a vegetative form or in a spore form. Okay. Second is disinfection. It is a process by which all the pathogen and the organism that are capable of producing the infection in the living cells, they are killed by this process. Okay. But in disinfection process देयर इज चांसेस कि जो स्पोर्स हैं वो किल नहीं होते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव फॉर्म होता है बैक्टीरिया का, उस फॉर्म में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको आप इजिली किल कर देते हैं. ठीक है. सो फॉर परफॉर्मिंग द डिसइंफेक्शन प्रोसेस certain disinfectants are used. They are capable of killing the microorganism that are present on the non living object. ठीक है. तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जनरली उनको यूज किया जाता है अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नॉन लिविंग सरफेस एरिया में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल टेबल, जिस भी टेबल पे आप कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उन सारी सरफेस पे अगर आपको बैक्टीरिया को किल करना है, इन दैट केस द reagent that are used for killing purpose, they are called as disinfectant. ठीक है. Next is the antiseptic. Antiseptics are the agent that are applied to the living tissues which prevent the infection by inhibiting the growth of the microorganism. ठीक है. Next term है asepsis. These are the technique by which the occurrence of the infection into an uninfected tissues are prevented. Okay. Next word is the bactericidal agent or germicides, means these are the agents that are used to kill the Excuse me, ma'am. microorganism. हाँ बेटा. मैम स्लाइड्स आर नॉट शोइंग इन द स्क्रीन. कर दिया है. ठीक है. Okay. So there are two terms, bactericidal and bacteristatic. Bactericidal means the agent that kill the microorganism. Okay. If there is bacteristatic terms, then bacteristatic means the agents that are used to prevent the growth of the microorganism. ठीक है. तो ये bactericidal and bacteristatic में difference होता है. एंड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है, जो डिसइंफेक्टेंट रिएजेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज करते हैं. एंड एंटीसेप्टिक के केस में जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं या जो केमिकल यूज किए जाते हैं, दे आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो दीज आर द टर्म्स दैट कम अंडर द स्टेरिलाइजेशन चैप्टर. ओके. मैम अभी भी शो नहीं मैम हो रही है. एक्सक्यूज मी, मैम. हाँ बेटा. यस मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही. हाँ कर रहे हैं. वेट वेट वेट. आ गई. यस मैम. थैंक यू मैम. Okay. So the second question comes, why we need sterilization process. Okay. So by the help of sterilization process, the first thing we done that we kill the microorganism that are capable of causing infection in the living tissue or living organism.
ठीक है. So microorganisms are responsible for the contamination and infection. So by using sterilization process, we kill the microorganism or prevent the growth of the microorganism. Okay, so this is the aim of the sterilization. ठीक है. Next. How can microorganism kill the how can microorganism be killed? मैम हाँ बच्चा. मैम मैम फिर से वही प्रॉब्लम. स्क्रीन. यस मैम. ओके, आ गई. यस मैम. ठीक है. एक्चुअली बार बार आप लोग में से कोई ना कोई आके कनेक्ट होता है, तो बार बार वापस जाने में स्लाइड जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है इधर उधर. ठीक है. ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर किल्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड. By the interference with the protein synthesis, by interruption of DNA, oxidative damage of the cell, disruption of the cell membrane. So these are the reason by which microorganism is killed by the sterilization process. Okay, there are some factors that influence the efficacy of the disinfection or sterilization process. First is the contact time, second is the physical. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम दीक्षा रिक्वेस्ट कर रही है मैम. एडमिट हो गया. ओके, स्लाइड दिख रही है. यस मैम. Okay, so here I describe the factors that affect the sterilization process and disinfection process. Okay, the first factor is the contact time. हाँ, कॉन्टेक्ट टाइम मीन्स होता है कि किसी भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जब भी आप कोई भी बैक्टीरिया को किल करते हो तो कितने टाइम के लिए या कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने किसी भी बैक्टीरिया को उस एरिया में या उस प्रोसेस के अंदर रखा है. ठीक है. सेकेंड इज द फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट. फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट मीन्स होता है बेसिकली जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रो के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है दैट इज 6 to 8. ठीक है. तो अगर आपका किसी भी एरिया में 6 to 8 का अगर पीएच होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है. तो बाय फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट वी अफेक्ट दी or we perform the sterilization process. Okay, second is the presence of organic material. The fourth is the temperature. Next is the type of microorganism, number of microorganism, material composition. Okay, so these are the factors that influence the efficacy of the disinfection process or sterilization process. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट टू स्टेलाइज मीन्स कौन कौन सी चीजों को आप स्टेलाइज करते हैं. ठीक है. सो ऑल द इंस्ट्रूमेंट दैट पेनिट्रेट दी सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन दैट शुड बी स्टेलाइज. Instruments that are not intended to penetrate the tissue but they may come into the contact with the oral tissues, they should be sterilized. If the sterilization process may damage the instruments, then sterilization can be replaced by the disinfection process. Okay, तो मेनली इस स्लाइड में यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत होती है. ठीक है. तो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मैंने बताया है कि जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या बोन्स होते हैं, मेनली जो आपके सर्जिकल प्रोसेस होती हैं उनमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको स्टेरिलाइज करना चाहिए. अगर आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट है सर्जरी के अलावा, अगर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपके माउथ के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो उनके केस में भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज करना कंपलसरी होता है. ठीक है. इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से या प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने पे खराब हो रहे हैं, तो उनके केस में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन प्रोसेस.
प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस होते हैं दे आर परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं या हाई टेम्परेचर पे खराब होते हैं, तो उनके केस में हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को ऑप्ट नहीं करते हैं। उनके केस में क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्शन प्रोसीजर में होता है कि आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल को अप्लाई करके जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो उन पे जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स क्लियर हो गए बेटा अभी तक? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं स्टरलाइजेशन को प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए? दे आर मेनली टू मेथड्स, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। इन फिजिकल मेथड इट इज क्लासिफाइड इनटू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, sterilization by filtration or mechanical method. Okay, second is the chemical method. In chemical method two type of sterilization process come, gaseous sterilization or sterilization by disinfectants, ठीक है। so these are the sterilization process by which microorganisms are killed, ठीक है। Okay, so start with the physical method. In physical method, there are three type of. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। Okay, 1 minute. आ गई स्क्रीन, आ गई है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आ गई? यस मैम। चलिए, so in physical method three sterilization process are there. First is the dry heat sterilization, second is the moist heat sterilization, and third is the sterilization by radiation. Okay, so start with the dry heat sterilization. In dry heat sterilization मतलब ऐसा sterilization that using heat for killing purpose. Okay, एंड ड्राई टर्म यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है उसका पर्पस ये है कि जो भी ये स्टराइजेशन प्रोसेस है इसमें वाटर को यूज नहीं किया जाता है, जो भी बैक्टीरिया है उसको किल किया जाता है बाय यूजिंग हीट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्ट where that are temperature sensitive, sorry, moisture sensitive. So by the help of heat the killing of microorganism is performed, ठीक है। so by using dry heat sterilization process substances that are sterilized they are glycerin, oils, liquid paraffin, petroleum, propylene glycol, powders such as talc or zinc oxide. So these are the substances that are sterilized by using dry heat sterilization process, ठीक है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप लिक्विड प्रिपरेशंस को अगर हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ एवापोरेशन, ठीक है, लिक्विड का एवापोरेशन हो सकता है, ठीक है, और जो भी मटेरियल है उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन अदर मेथड्स आर यूज फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए हैं बेटा? बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है? इन केस ऑफ ड्राई हीट इन केस ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो मेनली मैकेनिज्म यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए दे आर ऑक्सीडेशन, ठीक है। मेनली क्या होता है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज डन बाय द कंडक्शन मेथड। ओके, सो इन द कंडक्शन मेथड क्या होता है, फर्स्ट जो भी मटेरियल है वो हीट को रिसीव करेगा, आफ्टर दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हीट है वो ट्रांसफर होती जाएगी और फाइनली क्या होगा, जिस भी मटेरियल का आपको स्टरलाइजेशन करना है
वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो किलिंग मैकेनिज्म है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मेनली क्या होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, जितने भी बैक्टीरिया के सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन क्या होगा, जो भी प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाएगी, एंड फाइनली अगर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका सल्फाइड सल्फाहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है सिस्टीन एमिनो एसिड में, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जो सल्फाहाइड्रल ग्रुप होता है जो सिस्टीन एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दिस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज अकर। ठीक है, तो बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होगा, फाइनली बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी मैकेनिज्म बेटा, क्लियर हो गया है? यस मैम। चलिए, ठीक है, तो मेनली जितने भी प्रोसेस यूज किए जाते हैं ड्राई स्टरलाइजेशन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, उसमें मेनली जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड को यूज किया जाता है, एंड हीट ट्रांसफर इज डन बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो मेनली जो मेथड्स ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज किए जाते हैं, दे आर फ्लेमिंग, heat, incineration, sunlight and drying. There are four methods that comes under dry heat sterilization. ठीक है, सनलाइट एंड ड्राइंग मीन्स होता है बाय यूजिंग यूवी रेज आप क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ नेचुरल मैथड दैट यूज बाय द वाटर इन द टैंक एंड रिजर्वायर एंड लेक्स। ठीक है, जो भी आपकी लेक होती है, टैंक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें जो भी वाटर है उनकी स्टरलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए सनलाइट यूज करके हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीट। हीट मीन्स होता है अगर आपकी जो भी निडल है या फॉरसेप है या आपके वायर्स हैं, उनको बाय यूजिंग हीट आप क्या कर सकते हैं, उन्हें गर्म करके उन पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम किल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड है फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग मेथड जनरली हम यूज करते हैं अगर आपको कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है तो फ्लेमिंग मेथड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग मेथड में क्या होता है, फ्लेमिंग मीन्स हो गया बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम किलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म। ठीक है, तो जिस तरीके से कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स हमने देखी है बेटा, कैंडल्स देखी है? यस यस मैम। मैम। अच्छा, लैब में आप लोग ने बुनसन बर्नर फ्लेम्स देखे हैं जलते हुए? नो मैम। नहीं देखे हैं? देखी हैं ये बर्नर्स, देखे हैं लैब में रेड कलर के बर्नर्स होते हैं छोटे छोटे से? यस मैम यस देखे मैम। हैं। ठीक है, तो मेनली ये बर्नर यूज किया जाता है फ्लेमिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की आपको फ्लेमिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल ग्लास स्लाइड, निडल्स, कैप्सूल, कवर स्लिप्स, या इन सारी चीजों को अगर आपको गर्म करना है तो इनके लिए क्या करते हैं, दो बर्नर सिलेंडर्स जो होते हैं, बर्नर उनको अगल बगल रखते हैं, थोड़े मतलब स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, और फिर उन्हें जलाया जाता है। तो जलाने से क्या होगा, फिर जलाने के बाद जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनको अच्छे से गर्म किया जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में गैस पे चम्मच को अगर गर्म करना हो तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखते हैं, किया है कभी? यस मैम। ठीक है, तो सेम फ्लेमिंग में वही चीज होती है कि जो भी ये बर्नर्स हैं, बर्नर के ऊपर डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको लेके जाएंगे फ्लेम के पास और उन्हें क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा ड्यू टू दी फ्लेम, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लेमिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। एक मेथड और होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको जैसे कोई भी कल्चर करना होता है, बैक्टीरियल कल्चर करना होता है, तो ये जो आपके बुनसन फ्लेम्स होते हैं इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस पे रखने से क्या होता है,
जो इन बंसन फ्लेम्स जो निकलती हैं फ्लेम की वजह से वहां का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से क्या होगा, उस एरिया में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस जगह पे क्या हो जाएगी, उनकी किलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो किल करने से क्या होता है, उस एरिया में जिस एरिया में आपको कल्चर करना है, अगर वहां पे आप ऐसा एरिया प्रोवाइड कर दे जहां पे बैक्टीरियाज नहीं है, तो आप अपनी कल्चर परफॉर्म या कोई भी माइक्रो बायोलॉजिकल माइक्रो के जो भी प्रैक्टिकल है उन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ फ्लेमिंग? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, सो इन फ्लेमिंग इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस in which the material that is to be sterilized is kept in a hot part of the Bunsen burner flame for a few seconds and the process is repeated several times। ठीक है, ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि जो भी आपकी निडल्स हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द इंसिनेशन। मीन्स होता है अगर कोई भी मटेरियल होता है उसको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए जो हीट यूज की जाती है उसे आप कहते हैं इंसिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है उसे कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं ऐश में। ठीक है, नेक्स्ट इज द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हॉट एयर ओवन मीन्स हो गया है ओवन जिसमें एयर को क्या किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, so hot air oven or dry heat sterilization, it is a chamber, it is a metallic chamber which is consist of stainless steel। मैं यहाँ पे फिगर दिखा रही हूँ, इस तरीके का आपने देखा होगा, लैब में देखा है। Yes, ma'am. यस मैम। जी मैम। ये स्टार्च निकाला था पोटैटो से। हाँ, तो मैम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। चलिए, ये आपके हॉट एयर ओवन्स होते हैं। ये ओवन होते हैं जिसमें एयर को सर्कुलेट किया जाता है और जो एयर होती हैं वो हॉट हो जाती हैं बाय मींस ऑफ कॉइल्स। हीटिंग कॉइल्स होती हैं, उनकी हेल्प से क्या होती है, जो भी एयर सर्कुलेट हो रही है इनके अंदर वो हॉट हो जाती है। ठीक है, तो मेनली ये जो ओवन्स होते हैं ये मेटालिक चैम्बर्स होते हैं and the material that is used for these type of ovens are mainly stainless steel और aluminium। ठीक है, ये जो हॉट एयर ओवन्स होते हैं इनको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है एंड देयर आर टू टाइप ऑफ ओवन। यहाँ पे ये जो ओवन है ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रेविटी कन्वेंशन ओवन एंड सेकंड इज द मैकेनिकल कन्वेंशन टाइप ओवन। ठीक है, ये जो दो टाइप के ओवन होते हैं, पहला ग्रेविटी एंड सेकंड इज मैकेनिकल। इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, अगर आपका ओवन ग्रेविटी कन्वेंशन टाइप ओवन है तो उसमें जो एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी कैसे होती है, नीचे से ऊपर की तरफ भागती है, ऐसे ही होता है, ऊपर से नीचे आएगी नीचे से ऊपर आएगी। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो एयर है वो सर्कुलेट होती है ओवन में। ठीक है, इस जो ग्रेविटी टाइप जो ओवन्स होते हैं उनमें कोई भी फैन यूज नहीं किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी इफेक्ट जो भी एयर होती है अंदर वो हर जगह सर्कुलेट होती है। ठीक है, और जो सेकंड है मैकेनिकल कन्वेंशन टाइप ओवन, इनमें फैन को यूज किया जाता है एयर को सर्कुलेट करने के लिए। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटी टाइप एंड मैकेनिकल टाइप ओवन। क्लियर हो गया है? यस मैम। मैम हम लोग की लैब में कौन सी पाई जाती है, मैकेनिकल? बेटा जनरली मैकेनिकल टाइप ही यूज की जाती है। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉट एयर ओवन है दो टाइप के होते हैं, मेनली जो यूज किए जाते हैं मैकेनिकल टाइप ओवन्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन को पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ। दो ये चैम्बर जो होता है मेटालिक चैम्बर, इट हैविंग अ डबल वॉल and it is separated from each other by a thick layer of glass fiber insulation। अगर आप देखोगे, अगर आप इस दरवाजे को ध्यान से देखेंगे, दरवाजा काफी मोटा है, काफी Yes, थिक ma'am. लेयर का होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें दो कलर के दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं? Yes, मैम. तो इन दोनों दरवाजों के बीच में ग्लास फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लास फाइबर है ये हेल्प करता है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई भी हीट लॉस ना हो पाए।
ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये जब दरवाजा बंद करते हैं तो इसके दरवाजे पे एस्बेस्टॉस की गैस्केट लगी होती है, जैसे कुकर में लगी रहती है। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप दरवाजे को बंद करते हैं तो यहाँ पे भी एक एस्बेस्टॉस की गैस्केट लगी रहती है जो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ओवन, जो अंदर की शेल्फ्स होती हैं वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ओवन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो फैन होता है वो नीचे की साइड में होता है, प्लस साइड में प्रेजेंट होता है एंड बॉटम साइड में होता है। बॉटम नहीं कहेंगे, साइड में, नीचे की साइड होता है। ठीक है, और जो आपके हीटिंग कॉइल्स होते हैं वो एकदम बॉटम में प्रेजेंट होते हैं एंड सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया है? एयर, जो भी आपकी हॉट एयर है उसे अंदर लाया जाता है और जो आपकी एग्जॉस्ट एयर है वो ऊपर एक वेंट प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ है? यस मैम। There is a on and off switch that is provided along with the green and red indicator. यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच होता है जो रेड और ग्रीन का बताता है कि जब आपका ऑन हो जाता है तो रेड होता है, अगर टेम्परेचर जब आपका मेंटेन हो जाता है तो वहां पे वो ग्रीन शो करता है। ठीक है, एंड in case of hot air oven, heat is transferred by conduction method, convection method और radiation method depending upon the source of the coil। ठीक है, या source of the heat। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हॉट एयर ओवन है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया इंस्ट्रूमेंट पूरा बेटा? कंस्ट्रक्शन Yes, कई ma'am. बार पूछा जाता है। ठीक है, तो hot air ovens are the electrical device that are used for performing the sterilization process, and they are operated from 50 to 300 degrees centigrade. There is a thermostat controlling the temperature। जो आप अगर ये ओवन देखोगे ऊपर साइड में यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, the items or instruments that are utilized by the hot air oven are glasswares, forceps, scissors, caps, all glass syringes, swabs, liquid paraffin, dusting powder, fats, grease. So these are the material that are sterilized by using a hot air oven method। ठीक है, hot air oven method sterilization process is not suitable for the surgical dressing, रबर, प्लास्टिक, वोलेटाइल एंड हीट लाइबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप हॉट एयर ओवन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा, मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी कि जो आपके हॉट एयर ओवन होता है वहां पे किस मैकेनिज्म से बैक्टीरिया की किलिंग की जाती है, एंड ये भी बताना पड़ेगा जो हॉट एयर ओवन है वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है बेटा? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, so there is a precaution in case of hot air oven, that is glassware should be dry and oven should not be overloaded. Glass material after drying are allowed to cool down before use. Articles are to be arranged in a manner to allow the free circular of air। ठीक है, doors of the oven should be opened after it for the cooling purpose। ठीक है, so these are the precaution in case of hot air। okay,